when we talk about any physical problem, okay, when we talk about any physical problem, so then we think of solving that problem by developing some mathematical model of that problem and then solving that mathematical model. So this is what we actually do. And I think in one of the class I might have talked. I don't know about mathematical modeling and all. Did I talk? I don't know, in lab or somewhere I might have talked, or in lecture class I might have talked. I might have talked that when you look from different field from mathematics point of view, so then you will have some kind of uniformity. Did I talk this? Not sure, sir. Okay, so no issue. So when we talk about mathematical modeling, you should know the basis of mathematical modeling. How do we do mathematical model of any problem? Because when we talk about solving a physical problem, okay, when solving a physical problem, there is some. Is my screen visible? नो सर, आपकी स्क्रीन तो नहीं दिख रही, बस आवाज आ नो रही है। सर। I don't know why it is not visible. एक बार मैं दोबारा ट्राई करता हूँ. Now? Now it's visible, sir. Okay, okay. Okay, so I was talking that when we talk about solving a physical problem, okay, so then we should think of developing mathematical model of that problem and then solving it, right? So this is when we talk about this, then mathematical modeling term will come into picture. Mathematical modeling, okay, mathematical modeling. What is the basis of mathematical modeling? You should understand that first. Basis is physical law, or you can say, some fundamental principles. Okay, fundamental principles, right? Fundamental principles. Like for example, or mathematical model means इसका basis है. This is the basis. यानी कि using some fundamental law or physical law or physics, you can say, we develop mathematical modeling. और mathematical modeling का मतलब क्या है? That is should also be clear कि मतलब developing equations, okay, and equations may be algebraic equation, differential equations, or maybe integral equations. So these will be the type of equations. Okay, these are the mathematical equations. Okay, plus when we talk about differential equation, then certainly you need to have some boundary conditions associated, also boundary conditions. And also when you have some time dependent problem, then in addition to boundary condition, you need to have initial conditions also. ये कुछ आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है? तो मैंने क्या बताया, मैथमेटिकल मॉडल हम डेवलप करते हैं फिजिकल प्रॉब्लम का यूजिंग सम फिजिकल लॉ, राइट, और यू कैन से फंडामेंटल प्रिंसिपल इन डिफरेंट फील्ड्स. इक्वेशंस का मतलब है कि मैथमेटिकल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, or maybe algebraic equation, or when it may be integral equation. And when we, in addition to these equation, we may also require some boundary condition, right? Some boundary condition.
and some initial condition. So that may be required. Okay. Now, Sir, can you please record the meeting? uh, why it is required? Why it is required? Because I don't feel because I would be available. You will ask me to engage another lecture, I will do it. No issue. Okay. और 40 मिनट का है, कोई इशू नहीं है. उसके बाद हम लैब में जो करेंगे उससे आपको मिलेगा. आई कैन अंडरस्टैंड कि भी हाँ आप सोचते हैं कि इसको हम बाद में कभी भी देख लें, बट मेरे ख्याल से we'll discuss in the class itself later on also. No issue, है ना. Let me go informally यार. मैं informally जाता हूँ, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं करना चाहता. because रिकॉर्ड करके मैं अपने पास रखूँ उसका भी कोई मतलब नहीं है. I will have to share it. अगर मैं शेयर करूंगा तो then you may put it on something somewhere. और मैं इनफॉर्मल जाना चाहता हूँ. Let me go informal. I think there should not be any problem in that. सर बस वो हमें रेफर करने के लिए बाद में थोड़ा आसान होता. कोई Yes, दिक्कत sir. नहीं है बेटे. जब भी आपको प्रॉब्लम हो जस्ट लेट मी नो. आई एम हियर, है ना. तो वो हम चाहते हैं कि आप डिस्कस करो हमारे साथ. ठीक है. एक सेकेंड, लेट मी ओपन समथिंग एल्स. ओके. सो हाउ टू ऐड न्यू वन. ओके. इज इट क्लियर अप टू नाउ? Now I will be taking one example so that you can understand. Then I will be talking about solving that mathematical model कि इसको solve कैसे करते हैं. ठीक है. नया कैसे ऐड करें. I am using it first time actually. That's why it has causing some problem to me. Yes. Okay, so mathematical model, different kind of equations. Okay, and then basis is physical. Now let me take one example. जैसे जैसे आपका एग्जांपल आपने मैकेनिक्स में किया है या हीट ट्रांसफर में किया है, जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ आपके सामने कि ऐसे मेरे पास ये ये बार है, इसके ऊपर एक ये लोड लग रहा है ऐसे एफ. ठीक है. और यहाँ से फिक्स है x इक्वल टू 0 यहाँ पे है और x इक्वल टू L यहाँ पे है. ठीक है. लेट अस से इट इज मेड ऑफ सम मटेरियल हैविंग इलास्टिक मॉडुलस E. इलास्टिक मॉडुलस E है इसका एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A है. ये मैकेनिक्स की प्रॉब्लम मैंने ली है. ठीक है. क्लियर. now I have to develop a mathematical model of this. So I have to use some physics, I have to use some fundamental law. Okay. So fundamental law in mechanics is Newton's law. So what I will do is, because this is a continuous system, okay, so like variables are varying with x, so it is a continuous system. Okay. What I will do, at it some distance x, I will take a small element. I don't know what is happening. I think I will have to shift to something else. I think this is right. Clear? So let me draw it again here. F is applied or P is applied. Here x equal to L, here at x equal to 0, and elastic modulus is E, and area cross section is A. So this is a physical problem I am taking. Very simple example, which you have done, right? So you know that what I will do to develop mathematical model, what I will do, it is a continuous system. So what I will do, I will take a very differential element of a length dx at a distance x. Okay. So this is what I will take. So also you know that it may be subjected to some kind of axial load also, distributed load.
Okay, let us say it is maybe F. Let me call it as F. This is distributed load, axial load. Just like you might have talked in case of beam distributed load. So similar to that, distributed transverse load in case of beam we talked, but here it is distributed axial load. So that may also be there. For example, if you make it a vertical, so your gravity load is because of that only. Okay, so now I will take a differential element here. Let me make the free body diagram of this, and let me say that here the force is sigma, here sigma plus sigma at x, let me call it as x, here at x plus delta x. Okay, and there would be some distributed load F also, F, right? So that will also be there. So unit would be Newton per meter per unit length for this distributed load. So this will be F into delta x. It is delta x. I am putting delta x. So these are the load that are acting on this. Okay. So what you have to do is you have to do the balancing. Newton second law you have to apply balance because it is a static system. So then just you have to summation F. You have to make summation F equal to 0. That's all. Okay. If you do that and you apply the limit means delta x tends to 0. So what you will get is, if you remember, sigma x over dx plus f, this is equal to 0. This is what you will get. You can do it yourself, okay, in the limit, right? So this is what you will get. Okay. So this is per unit volume. This will be A will be. Yes. Sir, what is F? F is a distributed load, axial load, small f. सर सिग्मा क्या है और एफ क्या है ये पूछ रहा था सर. सिग्मा इज द स्ट्रेस. मैं मान के चल रहा हूँ आपको पता है कि जब मैं लोड लगाऊंगा तो स्ट्रेस इंड्यूस होंगे. हाँ सर. है ना. तो वो एक्स है. मैंने यहाँ पे कोई एलिमेंट बनाया, यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ इसको. तो आपको पता है कि इधर कोई स्ट्रेस लगना चाहिए, अगर ये इक्विलिब्रियम में, इधर भी लगना चाहिए. और ये क्योंकि एक्स के साथ वेरी कर रहा है तो मैं इधर लेके चल रहा हूँ सिग्मा एक्स और इधर लेके चल रहा हूँ सिग्मा एक्स प्लस डेल्टा एक्स. ओके सर, समझ गए. ठीक है. मतलब अगर नहीं समझ में आए तो जस्ट रेफर सम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बुक, तो उससे आपको और समझ में आ जाएगा. तो ये आपके पास मॉडल बन गया ये. ठीक है. और सिग्मा एक्स आपको पता है कि क्या होता है. अगर मैं इसको लिखूं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन ई एप्सिलॉन एक्स. ठीक है. एक्स में क्यों लिख रहा हूं यहाँ पे, ये ध्यान रहना चाहिए. ये आपको मैं लिख रहा हूँ एफ एक्स लिख देता हूँ मैं, इसको भी एक्स लिख देता हूँ क्योंकि ये सारे एक्स डायरेक्शन में है. मेरा ये एक्स डायरेक्शन में, मैं ये 1D प्रॉब्लम है मेरे पास, ये 1D प्रॉब्लम है, इसलिए एक्स लिख रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन में है. ठीक है. एंड आल्सो आई नो दैट सिग्मा एक्स इज इक्वल टू ई डी एप्सिलॉन एक्स, और ई एप्सिलॉन एक्स इज नथिंग बट डी यू बाई डी एक्स. आपको पता है. अगर मैं इसमें इंसर्ट करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, ई डी यू डी स्क्वायर यू और डी एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स ए. A maybe it will be divided, I think. This is maybe divided. Yeah, this should be divided, not multiplied. Unit is per unit length, then divide by area. This will be per unit volume. So this would be this. Okay. तो finally मेरे पास ये आ गया equal to 0. So this is what my mathematical equation is. ठीक है. अगर आप इसी की बात करें, बीम में भी बात करें, तो इसी तरह का इक्वेशन आपको कोई इक्वेशन मिलेगा. अगर फ्लूइड मैकेनिक्स में भी बात करें तो कोई भी प्रॉब्लम तो आपको इस तरह की इक्वेशन मिलेगी. सिमिलरली हीट ट्रांसफर में बात करें तो इसी तरह की इक्वेशन मिलेगी. एंड इवन यू लीव मैकेनिकल एंड गो टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोस्पेस और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, any physical problem if you talk. So each field they are governed by some fundamental physics. So using those fundamental physics you can derive some mathematical equation for that. तो ये mathematical model है इसका, equation इस problem का. अब now जो equation है, अगर मैं इसको solve करूं तो कैसे करते हैं अपन इसको solve करें तो simply you know very well किसको solve कैसे करेंगे, कैसे करते हैं. बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे.
बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन को 2 बार इंटीग्रेट करूं मैं इसको, अगर मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सोल्व करना है, तो आई विल टॉक अबाउट इंटीग्रेटिंग इट 2 टाइम्स एंड देन फाइंडिंग द कॉन्स्टेंट्स बाय अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस। तो ये जो गवर्निंग, इसको बोलते हैं गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन, गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन। और प्लस में इसके साथ अगर बाउंड्री कंडीशन अगर और ऐड कर दें या इनिशियल कंडीशन और ऐड कर दें, इनिशियल कंडीशन, तो ये दोनों को मिला के जो बनता है उसको बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल। क्लियर? मैथमेटिकल मॉडल इसको बोलते हैं। अब इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं। एक तो आपने तरीका बता दिया कि कैसे करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है, कि आप इसको इंटीग्रेट करिए 2 बार, कांस्टेंट आएंगे, बाउंड्री कंडीशन लगाइए, ठीक है, और कांस्टेंट निकालिए, सो दैट विल बी 1। तो दिस विल बी योर सॉल्यूशन। ये आप सोल्व करके यूएक्स निकाल सकते हैं, दिस विल बी नोन टू यू। क्लियर? यहां से यूएक्स निकल जाएगा। ये तो एक सेट स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसको सोल्व करने का, कि आप इंटीग्रेट करो और उसको सोल्व करो, ठीक है। तो until unless you have जब तक आपके पास सिंपल मॉडल है, सिंपल मैथमेटिकल मॉडल है, ठीक है, सिंपल का मतलब है कि ये आपको पता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर है, तो इट इज वेरी इजी टू सॉल्व दिस। अगर आप थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, 2D में जाते हैं, तो यू विल गेट some problem, 2D problem, you will get a mathematical model in terms of partial differential equation, ठीक है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और हो जाएगा। और when you talk about very complex geometry, so then it will become more complex. When you talk about non-linear materials, so then it will become more complex. In addition to geometry, materials are complex, boundary conditions are complex, loading conditions are complex, so then your mathematical model become very 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 complex to solve. तो उसको सोल्व करना मैथमेटिकल प्रोसीजर से, तो देन इट बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए हम देन वी लुक फॉर सम अदर अल्टरनेट, कि क्या हम कोई दूसरे अल्टरनेट से सोल्व कर सकते हैं। जैसे आपने मैथमेटिक्स में नॉन लीनियर प्रॉब्लम सोल्व किए, नॉन लीनियर इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशन या अलजेब्रिक इक्वेशन, Yes, sir. तो यू नो दैट देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू सोल्व दोस। और जैसे Yes. जैसे नॉन लीनियरिटी ज्यादा होती जाती है, देन इट बिकम मोर कॉम्प्लेक्स टू सोल्व, ठीक है। तो जब जब मैथमेटिकल मॉडल कॉम्प्लेक्स हो जाता है, देन वी डोंट गो फॉर सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम फ्रॉम मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, और मैथमेटिक्स प्रोसीजर एज पर द मैथमेटिक्स। तो हम कुछ अल्टरनेट मेथड देखते हैं। अब देखिए जो है, जब मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं, व्हेन वी से सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल, व्हाट डज इट मीन? What does it mean? Meaning is that finding this u, right, which satisfy my governing differential equation and which satisfy my boundary condition. This is the meaning of finding solution of mathematical model. ठीक है, u ऐसा u फाइंड करना, कोई फंक्शन फाइंड करना u का, जो मेरा गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और मेरी बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो वो है मेरा एग्जैक्ट सॉल्यूशन। उसको बोलते हैं एग्जैक्ट सॉल्यूशन, जो कि हम अगर इसको इंटीग्रेट करें 2 बार और कांस्टेंट को डिटरमाइन करें फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन, तो जो सॉल्यूशन आएगा वो मेरा एग्जैक्ट सॉल्यूशन आएगा। क्यों एग्जैक्ट सॉल्यूशन बोल रहा हूं मैं? क्योंकि वो मेरा सॉल्यूशन ux विल सेटिस्फाई माय गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट विल आल्सो सेटिस्फाई माय बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। तो अब जो है एग्जैक्ट सॉल्यूशन अगर मैं नहीं फाइंड आउट कर सकता हूं बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी, तो मैं क्या करूं? व्हाट शुड आई डू? What I can do then, I can use some approach to get some approximate solution. And these techniques are called numerical techniques. Clear? Numerical techniques. तो finite element जो एक सब्जेक्ट है, जो कि which is the basis of all these software, right? So that is one of the numerical technique to get the approximate solution. So now, what is finite element? So that I will just brief you.
क्लियर? सो नाउ फाइनाइट एलिमेंट मेथड क्या है? नाउ जैसे आपने बात किया अभी यूएक्स फाइंड आउट किया आपने, दिस वाज ए फंक्शन, इट वाज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। और आपको पता होना चाहिए जब हम अब मैंने कई अलग तरह की इक्वेशंस की बात की है आपसे। मैंने बात किया कि जब मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं तो इंटीग्रल इक्वेशन मिलेगा या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा या अलजेब्रिक इक्वेशन मिलेगा। नाउ किस केस में अलजेब्रिक मिलेगा, किस केस में इंटीग्रल मिलेगा, किस केस में डिफरेंशियल मिलेगा, हाउ वी विल कम टू नो? सो दैट डिपेंड्स ऑन योर सिस्टम। सिस्टम अगर कंटिन्यूअस है, अगर कंटिन्यूअस सिस्टम का मतलब है कि वेरिएबल जो है आपका, जैसे u है, ये एज ए फंक्शन है, ये फंक्शन, यानी कि x की वैल्यू पुट करो, u की वैल्यू ऑब्टेन करो। और x की वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 to l के बीच में, इट कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, राइट? तो अगर कंटिन्यूअस सिस्टम है तो ये आइदर इट विल गेट डिफरेंशियल इक्वेशन और यू विल गेट इंटीग्रल इक्वेशन। क्लियर? और अगर आपका डिस्क्रीट सिस्टम है, डिस्क्रीट का मतलब फंक्शन नहीं, मुझे चाहिए सॉल्यूशन एट सम सिलेक्टेड पॉइंट्स, लेट अस से, नॉट एज ए फंक्शन। जैसे मुझे u1 चाहिए, u2 चाहिए, u3 चाहिए, डिस्क्रीट पॉइंट पे मुझे सॉल्यूशन चाहिए। तो अगर मेरा डिस्क्रीट सिस्टम है और उसका मैं मैथमेटिकल मॉडलिंग करता हूं तो मुझे जो मिलेगा वो गवर्निंग अलजेब्रिक इक्वेशन बनेगा। अलजेब्रिक इक्वेशंस, ठीक है? और आपको पता है अलजेब्रिक इक्वेशन को सोल्व करना इजी रहता है, जो कि हम आई थिंक 5th-6th क्लास में ही सीख लेते हैं कि कैसे सोल्व करना है, राइट और नॉट? और डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल इक्वेशंस उसको हम 10th लेवल में जाके सीखते हैं और दे आर डिफिकल्ट टू सोल्व, ठीक है? तो डिपेंडिंग अपॉन योर सिस्टम, वेदर इट इज कंटिन्यूअस सिस्टम और वेदर इट इज डिस्क्रीट सिस्टम, your mathematical model will give you either differential or integral equation or it will give you algebraic equation, ठीक है? अब फाइनाइट एलिमेंट क्या करता है? फाइनाइट एलिमेंट हमें अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन देता है, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ दिस प्रॉब्लम फॉर विच वी कैन हैव द मैथमेटिकल मॉडल, ठीक है, फॉर ए कंटिन्यूअस सिस्टम। क्लियर? फॉर ए कंटिन्यूअस सिस्टम। डिस्क्रीट सॉल्यूशन का मतलब, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि मुझे जो है मैं क्या, जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी प्लॉट इट, है ना? जैसे जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे टेम्परेचर यहाँ पे है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, एक बार है, और यहाँ पे है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वाल है, वाल, ये फ्री एंड। तो आपको पता है अगर इसका मैं टेम्परेचर प्लॉट करूं, इसका मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करके इसको प्लॉट करूं, तो इस तरह से मुझे मिलेगा, यहाँ पे 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, यहाँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, एंड दिस इज व्हाट माय टी एक्स इज, इट इज ए हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम। Similar to that, you can develop a mathematical model and you can find out Tx and you can plot it. Okay, you can determine it by using boundary condition and you can plot it. कर सकते हैं आप इसको, ठीक है? तो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन का मतलब, ये तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन हो गया। एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्यों हुआ? दिस इज एग्जैक्ट सॉल्यूशन। एग्जैक्ट सॉल्यूशन, ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्यों हुआ? क्योंकि ये मेरा जो गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करके और बाउंड्री कंडीशन जो है उसको सेटिस्फाई करके मैंने ऑब्टेन किया है, ठीक है? अब मैं इसका बोलूं कि यू जस्ट टेल मी व्हाट इज द अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस, इसका अप्रोक्सीमेशन क्या है? कैन एनीवन टेल व्हाट इज द अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस कर्व? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस कर्व? यस, स्ट्रेट लाइन से। एक्सपोनेंशियल। या सब बता देंगे मुझे कि ये इसका स्ट्रेट लाइन होगा। वेरी गुड, ठीक है ना? तो एफएम में हम क्या करते हैं, हम ये फाइंड आउट नहीं करते टीएक्स, हम ये फाइंड आउट नहीं करते, हम इसको फाइंड आउट करते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेट, ठीक है? तो अगर मैं बोलूं अब ये टीएक्स इज अप्रोक्सीमेटेड एज नाउ ए प्लस बी एक्स, ठीक है, ए प्लस बी एक्स, ये न्यूमेरिकल टेक्निक में ऐसे करते हैं,
ठीक है। अब ए और बी हम मान के चलते हैं कि हमारा जो ये लाइन है इसकी इक्वेशन ये बनेगी a प्लस बी एक्स। अब मुझे ए और बी निकालने हैं, तो आइदर आई कैन यूज गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन और आई कैन यूज माई बाउंड्री कंडीशन, तो ये निकल जाएगा। तो फाइनाइट एलिमेंट या न्यूमेरिक, नॉट फाइनाइट एलिमेंट, लेट मी टॉक फर्स्ट न्यूमेरिकल टेक्निक, है ना। तो वो ये फाइंड आउट करता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब दिस इज द यू नो द डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट एंड approximate solution. Actually we have to minimize this difference, ठीक है। उसके अलग अलग तरीके हैं। अब देख तरीका तो ये है कि अगर मैं a प्लस बी एक्स एक लाइन फिट न करके एक सेकेंड ऑर्डर पैराबोलिक इक्वेशन को फिट करूं, इंस्टेड ऑफ a प्लस बी एक्स आई फिट a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा? What will happen? It will be closer to this. Am I right? It will be closer to this. Yes, So sir. this is one way, right? Another way is through finite element. Another way is finite element. Finite element क्या करेगा? वो क्या करते हैं हम, चलो ठीक है, हम जो है इसको now it is not that it is something like this. Now instead of single line fitting, what I will do, I will divide this rod into, this is 200 degree centigrade, it is 20 degree centigrade, and here I have x. मैं क्या करूंगा, इसको दो एलिमेंट में डिवाइड कर दिया मैंने, ये 1 ये 2, ठीक है। अब मैं जो है क्या करता हूं, अब दो फिट करूंगा, 2 फिट, सिंगल फिट नहीं करके 2 फिटिंग करूंगा। What you are observing here? You are observing that it is moving closer to exact. अगर और भी डेविएशन और भी कम करना है तो और उसको डिवाइड कर दो। You can see here it will further move closer to your exact solution. तो बेसिक आइडिया फाइनाइट एलिमेंट का यही है कि हम जो प्रॉब्लम है उसको स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करके वी फाइंड सॉल्यूशन, approximate solution. Again I am telling approximate solution. We find approximate solution over these elements, and that would be my solution, approximate solution altogether, which will be very close to my exact solution. Clear? Now इसमें फाइनाइट एलिमेंट में क्या है कि हम एज ए फंक्शन नहीं निकालते सॉल्यूशन को, एज ए ux और tx नहीं निकालते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम इस नोड्स के ऊपर सॉल्यूशन निकालते हैं, नोड्स के ऊपर। नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड ux और tx, व्हाट आई एम इंटरेस्टेड, आई वांट दैट u at x1, u at x2, u at x3, so this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, and so on. Or maybe if it is a heat transfer problem, I would be interested in temperature at x1, temperature at x2, and so on. ठीक है। Now I am not interested in the whole domain of the problem. I am interested in selected number of points, x equal to x1, x equal to x2, and so on. Excuse me, तो sir. मेरा क्या वो सही मेरा है। फंक्शन होगा। Excuse me, sir. Yes. सर ये जो ux1 ux2 वैल्यूज अगर आ रही हैं तो ये हम लोग जो अप्रोक्सीमेट किया फंक्शन उस हिसाब से आएंगे क्या? देखो जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आप लीनियर फिट करिए, लीनियर फिट, तो आपको पता है यहाँ पे मुझे पता है क्या है, आई नो इट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैं ये लाइन की इक्वेशन नहीं निकाल सकता क्या? कैन आई डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? यस सर। निकाल सकता हूं ना। और जब मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन पता लग गया तो मैं इन बिटवीन भी निकाल सकता हूं। यस सर, समझ गए। ठीक है। इसी तरह से जब मैं एक सिंगल एलिमेंट की बात करूंगा तो वहां पे भी इसी तरह से है कि मेरे पास यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, नोन होगा, अननोन होगा तो मुझे निकालना है, वो फाइनाइट एलिमेंट में तो मुझे निकालना पड़ेगा। तो जो मेरे फाइनाइट एलिमेंट में निकल के आएगा वो इस तरह से नहीं आएगा कि u एज ए फंक्शन ऑफ x और t एज ए फंक्शन ऑफ x। फाइनाइट एलिमेंट से निकल के आएगा कि इस नोड के ऊपर ये
टेम्परेचर है, इस नोड के ऊपर ये डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन ही है। ये डिस्क्रीट पॉइंट के ऊपर सॉल्यूशन मिलेगा मुझे, सिलेक्टेड नंबर ऑफ पॉइंट्स पे, जिनको हम नोड्स बोलते हैं फाइनाइट एलिमेंट की लैंग्वेज में। सर ये जो U1 U2 वैल्यूज हैं ये एग्जैक्ट वाले लाइन पे लाई करेंगी या फिर जो अप्रोक्सीमेटेड लाइन है उन पे लाई करेगी? नहीं, जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी। हो सकता है ऊपर नीचे भी हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। ये तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। क्या आएगा सॉल्यूशन वो तो फाइनाइट एलिमेंट निकालेगा, हमें पता थोड़ी है कि वो यहां पे ही आएगा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी ऑन द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। सर ये जो UX1 की वैल्यू तो- आएगी वो हमारी अप्रोक्सीमेट कर्व पे लाई करेगी ना? मतलब इनके पास भी हो सकती है, थोड़ा दूर भी हो सकती है। जो सर हम मतलब- वैल्यू निकाल रहे हैं, जो फाइनाइट एलिमेंट हाँ। से वैल्यू निकल के आएगी वो हमारे अप्रोक्सीमेट वाले कर्व की होगी ना, एग्जैक्ट वाले कर्व की नहीं होगी। नहीं, एग्जैक्ट की नहीं होगी, नहीं होगी, वो अप्रोक्सीमेट की होगी, बिल्कुल ठीक है, अप्रोक्सीमेट की होगी। ओके सर। मैं सिर्फ जस्ट ये एग्जांपल ले रहा हूं आपको, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि भी हम कर क्या रहे हैं उसमें और क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मुझे क्या मिलेगा, डिस्क्रीट सॉल्यूशन मिलेगा, नोड्स के ऊपर सॉल्यूशन मिलेगा, नोड एज ए फंक्शन, नोड एज ए फंक्शन। तो इसका मतलब मेरा जो अर्लियर जो कंटिन्यूअस सिस्टम था वो मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया मैंने? इज माई क्वेश्चन क्लियर? डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर, डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर दिया। और आपको पता है डिस्क्रीट में जब हम बात करते हैं इक्वेशंस की, तो कौन सी इक्वेशन मिलती है हमें? एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो अर्लियर जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन था वो हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया एल्जेब्रिक इक्वेशन में। ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में है ये आंसर। फ्रॉम मैथ पॉइंट ऑफ व्यू हम क्या कर रहे हैं, गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल इक्वेशन को हम एल्जेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। या हम वैसे अगर सिस्टम की बात करें तो हम कंटिन्यूअस सिस्टम को चेंज कर रहे हैं डिस्क्रीट सिस्टम में। क्लियर? यस सर। हाँ, और अब जब हम सोल्व करेंगे एल्जेब्रिक इक्वेशन में सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, हमें मिलेगा जैसे टेम्परेचर एट दिस नोड T1, ये मान लीजिए ये T1 है, मान लो ये 1 नोड है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, T2, T3, T4, T5। तो T1 और T5 तो आपके बाउंड्री कंडीशन है, राइट। और मुझे T2 पर मिल जाएगा, T3 मिल जाएगा, T4 मिल जाएगा जब मैं इसका फाइनाइट एलिमेंट सॉल्यूशन करूंगा। अब क्वेश्चन आता है कि बीच में कैसे निकालूं। बीच में आपको पता है कि अगर मैं लीनियर फिट कर रहा हूं तो मैं इंटरपोलेशन से निकाल सकता हूं बीच में। सो दैट वे आई विल नो द कंप्लीट सॉल्यूशन। बट रिमेंबर, एक्सक्यूज मी, ये अलजेब्रिक इक्वेशन जो है ये हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग होगा या एक ही है? वो एलिमेंट इक्वेशन भी होते हैं, एलिमेंट लेवल भी इक्वेशन होती हैं, और फिर आपकी पूरे 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 प्रॉब्लम के लिए भी इक्वेशन होता है। फिर हम कुछ इसमें देखिए, मैं आपसे फाइनाइट एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो पूरा एक अपने आप में कंप्लीट कोर्स है, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। तो उसके लिए प्रोसीजर है कि हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को एल्जेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एलिमेंट को डिवाइड करते हैं तो एलिमेंट के ऊपर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। देयर इज अ प्रोसीजर फॉर दैट कि हम एलिमेंट लेवल सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर असेंबली करेंगे आपस में, और फिर कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे। तो डोंट नीड टू गो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इनटू द डेप्थ ऑफ दिस, बट यू शुड गेट आइडिया कि हम करते क्या हैं। हम क्या करते हैं कि मैंने आपको आइडिया दिया कि मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं, जो फाइनाइट एलिमेंट क्या करेगा या अदर न्यूमेरिकल टेक्निक्स भी जो क्या करेगी कि गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन को एल्जेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दे। यस सर। सर आपकी स्क्रीन हट गई है। सर भी हट गए हैं। नहीं, एक आईडी हेलो? से है, एक से। हेलो, यस सर सर। आपकी स्क्रीन हट गई। हेलो।
Yes, sir. मेरा जो है टैब डिस्कनेक्ट हो गया, तो आई विल हैव टू कंटिन्यू विद दिस। ओके, कि मुझे जो है, मैं सिर्फ आई कैन स्पीक ओनली, आई थिंक देयर इज नो नीड टू यूज नाउ ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड, सो जस्ट आई विल कीप ऑन टॉकिंग। कि जैसे मैंने बताया आपको कि हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो हमारा जो गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग न्यूमेरिकल टेक्निक इंक्लूडिंग फाइनाइट एलिमेंट। ओके, एंड देन वी सोल्व दोज अलजेब्रिक इक्वेशन यूजिंग सम एल्गोरिथम। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है आपके पास जो है अलजेब्रिक इक्वेशन 2 या 3 बनेगी, 2 या 3 बने तो आप मैं उसको हाथ से मैनुअली सोल्व कर सकते हैं। बट यू थिंक ऑफ कि जब हम एक विंग ऑफ एरोप्लेन या ऑटोमोबाइल का पार्ट है किसी को, उसको हम अगर एनालाइज करते हैं, क्या साइज है उसका, कितने एलिमेंट, मिलियंस ऑफ एलिमेंट वुड बी देयर। और मिलियंस ऑफ एलिमेंट का मतलब है कि मिलियंस ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन बनेंगी, क्योंकि दे आर प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जितने एलिमेंट जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा इक्वेशंस बनेंगी। तो मिलियंस ऑफ इक्वेशन को सोल्व करना इतना इजी नहीं है, इसीलिए उसके लिए कोई सोल्वर, कोई एल्गोरिथम, कोई हमें जो प्रोग्राम यूज करना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, तो जो कि ये जो सॉफ्टवेयर है, जो कमर्शियल सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग अबेकस, एनसीज, इनके अंदर होता है ये। तो बेसिकली हमारा जो फाइनाइट एलिमेंट क्या करता है वो मैंने बताया आपको, कि हम पहले क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं अपने डोमेन्स को। जहां पर भी 2 एलिमेंट मिलते हैं, जो मीटिंग पॉइंट होगा, जो उसको बोलते हैं नोड। तो नोड इज वन टर्म, देन एलिमेंट, दो जो एलिमेंट जहां ज्वाइन करते हैं उसको नोड बोलते हैं। ठीक है, नोड्स की वैल्यू में पहले से पता होगी क्या? किसकी? नहीं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मुझे नोड में डिवाइड करना, आई कैन सिलेक्ट एनीवेयर, बट देयर इज सम वे कि भी मुझे कहां सिलेक्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे मुझे डिवाइड करना चाहिए एलिमेंट में, वो सब आप फाइनाइट एलिमेंट में सीखते हैं। ठीक है, तो वो आपकी चॉइस है, बट देयर इज सम वे टू डू इट, कि भी आप इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट में डिवाइड कर लीजिए जिनकी लेंथ इक्वल है, या फिर अनइक्वल में भी कर सकते हैं। राइट, तो वो तरीका है करने का। तो उसके बाद क्या करते हैं हम, जैसे उसको हम एलिमेंट लेवल पे हम सोल्व करते हैं इक्वेशन को। ठीक है, तो हमें एलिमेंट लेवल इक्वेशन मिलेंगी। फिर उसके बाद हम सब एलिमेंट्स की जो इक्वेशंस हैं असेंबली करके उनको सबको जोड़ के कंबाइन बनाते हैं हम, कंबाइंड, राइट, कंबाइंड। फिर हम उसको सोल्व करते हैं, तो हमें जो मिलेगा वो नोडल सॉल्यूशन मिलेगा। नोडल यानी कि नोड के ऊपर हमें सॉल्यूशन मिलेगा, टेम्परेचर, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, व्हाटएवर, स्ट्रेस एटसेट्रा, तो हमें नोड के ऊपर मिलेगा। फिर उसके बाद फिर आप उसको जैसे भी यूज करना चाहे वैसे कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सॉफ्टवेयर, अब जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, मैं बात कर रहा हूं एनसीज, अबेकस, हाइपरमैथ्स, नास्ट्रॉन, मल्टीफिजिक्स ना, कॉमसोल मल्टीफिजिक्स, उनके पीछे क्या होता है कि मतलब जब इनको सोल्व करते हैं तो बेसिकली हम इनको 3 उसमें डिवाइड करते हैं, 3 उसके अंदर। वन इज कॉल्ड प्री प्रोसेसिंग। let me share my screen and open some slide. God, oh, I'll open it again. Yes. Yes. So there are basically 3 steps. 3 steps. One is pre-processing. Pre-processing. Processing. Hope I am audible. Yes, sir. And So these 3 steps are for what? जब भी किसी सॉफ्टवेयर पे काम करोगे इनके ऊपर, तो ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। वो इस टर्म को यूज नहीं करेंगे,
कोई टर्म और दूसरी यूज हो सकती है, बट यू शुड अंडरस्टैंड दिस। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अब देखो बीम का प्रॉब्लम बात किया ना हमने, उसको सोल्व करना है हमें, उसका मैथमेटिकल डेवलप किया, उसको सोल्व किया। अब जस्ट सोचो कि मुझे सॉफ्टवेयर को बताना है कि भाई आपको ये काम करना है, तो मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी जब मैं बीम की बात करता हूं, या जो बार की प्रॉब्लम मैंने बात किया, क्या क्या मुझे इंफॉर्मेशन उसको देना पड़ेगा? प्रॉपर्टीज, सर उसके प्रॉपर्टी मतलब डायमेंशंस, मेटेरियल प्रॉपर्टी देना पड़ेगा, Yes, ठीक sir. है। डायमेंशंस और बताने होंगे। डायमेंशंस यानी ज्योमेट्री डिफाइन करनी पड़ेगी, ये लेंथ है, ये रफ क्रॉस सेक्शन है, और इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशन देनी पड़ेगी, यानी कि ये फिक्स है, ये फ्री है, वट ठीक है। और मुझे बताना पड़ेगा लोड कहां लग रहा है। इज इट क्लियर? तो Yes, ये sir. सारी इंफॉर्मेशन हमें सॉफ्टवेयर को देनी पड़ती है। क्लियर? या इसके अलावा जो है लोडिंग कंडीशन, मटेरियल, ज्योमेट्री, ओके, बाउंड्री कंडीशन, ऑल दीज, तो ये सब जो है हमारा प्री प्रोसेसिंग में आता है। यानी कि सॉफ्टवेयर को हम प्रॉब्लम को मॉडल करके देते हैं कि भाई ये मटेरियल है, ये ज्योमेट्री है, ये लोड लग रहा है, ये बाउंड्री कंडीशन है, और इसके अलावा हमें ये भी देना पड़ता है कि किस एलिमेंट का यूज करके हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, कितने एलिमेंट में डिवाइड कर रहे हैं, ओके, ये सब हमें देना पड़ता है प्री प्रोसेसिंग में, राइट। और एक इंपॉर्टेंट चीज और देनी पड़ती है, वो है कि किस तरह का आप एनालिसिस कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को ये बताना पड़ता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं स्टैटिक एनालिसिस कर रहा हूं, लीनियर स्टैटिक एनालिसिस कर रहा हूं, या नॉन लीनियर स्टैटिक एनालिसिस कर रहा हूं, या डायनामिक एनालिसिस कर रहा हूं, या मॉडल एनालिसिस कर रहा हूं, या वाइब्रेशन एनालिसिस कर रहा हूं, क्या एनालिसिस कर रहा हूं, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर को ये बताना पड़ता है, उनकी अपनी टर्मिनोलॉजी होती है उसके लिए। कोई सिंपली ये वो यूज कर लेता लीनियर स्टैटिक एनालिसिस, वो भी हमें बताना पड़ता है सॉफ्टवेयर को ये एनालिसिस करना है मुझे, ठीक है। तो वो ये जब सारी चीजें आती है वो प्री प्रोसेसिंग में आती हैं। इतना करने के बाद सॉफ्टवेयर क्या करेगा, बैकग्राउंड के अंदर वो कुछ प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है। और जैसे मैंने बताया वो करेगा क्या, वो क्या करेगा कि उसके जो मैथमेटिकल मॉडल है इक्वेशन का, प्रॉब्लम का, उसके अकॉर्डिंग जो है फाइनाइट एलिमेंट मॉडल डेवलप करेगा। फाइनाइट एलिमेंट मॉडल डेवलप करने का मतलब ये है कि एलिमेंट लेवल इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन डेवलप करेगा, फिर असेंबली करके पूरी की पूरी जो है पूरे डोमेन के लिए, पूरी प्रॉब्लम के लिए जो अलजेब्रिक इक्वेशन बनाएगा, और उसके बाद बाउंड्री कंडीशन इंपोज करेगा, फिर उसको सोल्व करेगा। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ प्रोसेसिंग। सॉल्यूशन मींस, प्रोसेसिंग को हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं, सॉल्यूशन तो वो उसको सोल्व करेगा, और सोल्व करने के बाद मुझे क्या देगा वो, व्हाट इट विल गिव मी, रिजल्ट। जैसे मैंने बताया अभी। या कैन समवन टेल मी क्या देगा मुझे? यस, एम आई ऑडिबल? अप्रोक्सीमेट अलजेब्रिक इक्वेशन। नहीं, इक्वेशन तो दे दी इसने, प्रोसेसिंग करके जब सॉल्यूशन कर, अलजेब्रिक इक्वेशन तो आपने डाटा देने के बाद जब उसको बोला कि प्रोसेस करो, तो बैकग्राउंड में वो अलजेब्रिक इक्वेशन बनाएगा, और अलजेब्रिक इक्वेशन बनाने के बाद उसको सोल्व करेगा। सोल्व करने के बाद जो मुझे सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा मुझे? नोड्स पे कोई वैल्यू, चार्ट हो तो सर मिल सकता नोड्स के है। ऊपर वैल्यू, नोड्स के ऊपर वैल्यू, और किसकी वैल्यू? जो हमारा जो वेरिएबल है, बेसिक वेरिएबल, जिसकी हमारी जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था इक्वेशन में, उसकी वैल्यू देगा नोड्स के ऊपर। जैसे डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ मैकेनिक्स, टेम्परेचर इन केस ऑफ हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम, वेलोसिटी इन केस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स प्रॉब्लम, ये हमें नोड के ऊपर देगा, नोड के ऊपर, ठीक है। अब नोड के ऊपर सॉल्यूशन मिल गया आफ्टर सॉल्यूशन। अब उसके बाद मुझे क्या जरूरत पड़ सकती है, आई मे रिक्वायर टू गेट सॉल्यूशन इन बिटवीन द नोड्स। नोड के ऊपर तो मुझे पता लग गया, मुझे नोड के बीच में निकालना है। या मान लीजिए मुझे डिस्प्लेसमेंट तो पता लग गया, मुझे स्ट्रेन निकालना है, स्ट्रेन भी पता लग गया मुझे, और उसके बाद मुझे स्ट्रेस निकालना है, टू मेक यूज ऑफ सम फेलियर क्राइटेरिया, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ तरह की पोस्ट प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी।
From displacement, nodal displacement, I can get displacement in between nodes. Also, I may require to get some other variable, secondary variable जिसको बोलते हैं हम, जैसे strain, इसी तरह से हीट ट्रांसफर में जाए तो मुझे टेम्परेचर मिलेगा पहले, उसके बाद मुझे जरूरत पड़ सकती है हीट फ्लक्स निकालना है या टेम्परेचर बिटवीन नोड्स निकालना है, वो सब मुझे पोस्ट प्रोसेसिंग में करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है आपका बेसिक प्रोसीजर है। और उसके लिए क्या है कि अलग अलग सॉफ्टवेयर में जो है अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो, बट यू शुड अंडरस्टैंड द बेसिक फंडामेंटल बिहाइंड मुझे फिर आप डिजाइन सक्सेस नहीं हो तब तक जो है यू हैव टू मे कीप ऑन चेंजिंग मटेरियल, ज्योमेट्री, व्हाटएवर, तो वो आप करते रहते हैं, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन इतने बनते हैं कि ऑलवेज यू कैन नॉट परफॉर्म एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। तो आप क्या है कि पहले सॉफ्टवेयर पे करो, सॉफ्टवेयर पे आप थोड़ा चेक करके देख लो कि हाँ ठीक आ रहा है, तो जो आपके पास कुछ मतलब एक दो फाइनल जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन बच जाते हैं तो उसमें को आप जो है प्रैक्टिकली परफॉर्म करके प्रैक्टिकली भी टेस्ट कर सकते हैं फिर उसको, और करना ही चाहिए, करते हैं, क्योंकि यू कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन द सॉफ्टवेयर, दैट्स ऑल। तो ये सिर्फ इतना यूज कर सकते हैं आप इसका कि हाँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन को कम कर सकते हैं, राइट। दे आर वेरी फास्ट, दे आर वर्चुअल एक्सपेरिमेंट्स। और फिर फाइनली जब आप कुछ श्योर हो जाएं कि कुछ मतलब मान लीजिए 10 परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आप 1-2 पे आ जाते हैं, तो 1-2 के लिए आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। Am I क्लियर? तो अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप करना चाहते हैं, इसमें प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, इसमें और आगे सोच रहे हैं, जो हायर स्टडी के बारे में सोच रहे हैं, है ना, तो उनके लिए ये काफी अच्छा है कि आप थ्योरी को भी पढ़ें। ये ध्यान रखिए कि ये सॉफ्टवेयर अपने आप में कुछ नहीं है until unless you know the theory behind those। थ्योरी दो चीजें हैं, एक तो है कि फाइनाइट एलिमेंट थ्योरी, वो एक अलग चीज है। उसके बाद मुझे अगर मान लीजिए मैं इसको सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा हूं टू सोल्व ए प्रॉब्लम इन सॉलिड मैकेनिक्स, तो मुझे सॉलिड मैकेनिक्स का नॉलेज भी चाहिए, नॉट ओनली फाइनाइट एलिमेंट। फाइनाइट एलिमेंट तो चाहिए, मुझे सॉलिड मैकेनिक्स का भी चाहिए। अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स में काम कर रहे हैं तो उसका भी मुझे नॉलेज चाहिए। तो दैट थ्योरी इज मस्ट। आफ्टर दैट यू कैन मेक यूज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर एंड ऑल। ठीक है? Yes, sir. ओके सर।
Yeah, so I will be sending tutorial today itself, now itself. Okay, तो आज एक बैच का है, तो वो पहले हम कुछ ट्यूटोरियल प्रॉब्लम करेंगे डिजाइन से रिलेटेड, देन लास्ट के कुछ टाइम के लिए हाफ एन आवर और सो वी विल बी वर्किंग ऑन दोस ट्यूटोरियल्स। और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आएंगी तो आपके जो भी क्लास टीचर हैं वो रहेंगे एंड दे विल बी हेल्पिंग यू। ठीक है, ओके सर, ओके देन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अरविंद, तो मैंने आज थोड़ा बता दिया हम लोगों को, फाइनाइट एलिमेंट का बताया मैंने, और जो जनरल बताया कि क्या क्या करते हैं। ठीक है, आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं